we started off this chapter. First, I had summarized you. Then, in the last class, we had studied what is management, features of management, and then importance of management. Now, the next topic we are going to read is nature. Now, what is the meaning of nature? See, you must have seen that कई जगहों पर ये बोला जाता है कि वी आर हैविंग द पॉलिसी, वी आर हैविंग दिस टेक्निक, हमारी कंपनी का जो है ये टेक्निक है, हम ऐसा मतलब कि वी हैव दिस काइंड ऑफ लिंक. तो जो मैनेजमेंट है, when we talk about the word management, we are part of the society. And if we say art, we say a person is a dancer, a person is a lawyer, a person is a scientist. तो what makes them that? उन्हें वो क्या चीज़ बनाती है? Why they have this word कि वो साइंस है, वो आर्ट है या फिर वो प्रोफेशन है? So in which category do we take management as? फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बच्चा होगा जो कि एक पर्टिकुलर सिंगर को पसंद करता होगा, दूसरा होगा वो दूसरे पर्टिकुलर सिंगर को पसंद करता होगा, लाइक वी हैव अमित त्रिवेदी और वी हैव दिस अरिजीत सिंह. दोनों सॉन्ग्स जो हैं दे आर सिंगिंग द सॉन्ग्स ऑफ, मतलब कि उनका जो है थोड़ा सॉरोफुल रहता है. बट सम पीपल लाइक द वॉइस ऑफ अमित त्रिवेदी, समवेयर लाइक मतलब कि अरिजीत सिंह. तो व्हाट इज दैट डिफरेंस? और लेट अस सी एनी, ये मतलब पेपर में क्वेश्चन आया हुआ बेटा, दिस आई एम टेलिंग यू एज अ क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन सोनू निगम एंड एक और सिंगर का लेकर आया था. Similarly, if you look into the music directors, you go to two restaurants. What happens is two different people will be having the same thing as two different presentation. Dance. Someone might be excelling in one style, another might be in another. तो लेकिन उनका सबका बेस क्या है? डांस है. सबका बेस क्या है? डांस है. सबका बेस क्या है? सिंगिंग है. लाइक अमित त्रिवेदी ऑल्सो सिंग्स एंड अरिजीत सिंह ऑल्सो सिंग्स. दोनों ही गाना गा रहे हैं, लेकिन गाने का जो तरीका है वो अलग है. सुर वही है, द नॉलेज ऑफ ऑल द कॉर्ड्स वही है. सेम you look into any artist, M.F. Hussain, Raja Ravi Verma. Some people say M.F. Hussain was a modern artist. तो what is that? कलर्स तो वही है, यूज तो वो वही कलर करेंगे. अगर हम कहें रेड एंड येलो है तो वो ऑरेंज ही बनेगा, उसको तो और कोई कलर आप बना नहीं सकते हो. मीन्स द बेसिक नॉलेज सबका सेम होता है, बट एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से होता है. दैट इज आर्ट. तो वेदर मैनेजमेंट इज आर्ट, डज इट हैव दोज क्वालिटीज ऑफ आर्ट? कैन वी अप्लाई आवर ओन थियोरी? सेकेंड हमारा आता है साइंस.
Now when we say science, that means something which is universal. If you are adding salt to water, whether you are performing it in your home or you are performing in your practical exam, it is going to be the salty water. It's a universal application. You have some cause and some effect. जो साइंस का एक बेसिक एलिमेंट है वो यही है, and it is based on certain system. It is based on certain principles. Like हम न्यूटन का प्रिंसिपल लेते हैं, if an apple falls down, so it will fall on the earth only. Every action has a reaction. So whether management is also having certain rigid theories. Third, profession, doctor, lawyer. If you want to become a doctor, first of all you have to give an entrance exam. In India we are having NEET. Then you have to go for systemized learning, 5 years, 6 years. You need to go for the rotatory internship, and then you have to get yourself registered with the medical council or the relevant authorities. Like अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, आपको आयुष मिनिस्ट्री से रजिस्टर करना पड़ेगा. यू आर एन एलोपैथिक, तो यू हैव टू गो फॉर MCI. यू आर अ डेंटिस्ट, यू हैव टू गो फॉर DCI. इफ यू आर अ लॉयर, सेम, आपको एंट्रेंस देना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाना है. सो इज इट देयर इन मैनेजमेंट ऑल्सो? So what is the nature? Whether we can call it as art, whether we can call it as science, or we can call it as profession. This is a question which comes for 5 marks. And as I have told you the example of Sonu Nigam and then A.R. Rahman, this question is there in your book also. Means if you are having any kind of books, you will be finding this question. What is the, identify the nature in the and explain it. Now over the period, अगर हमने 11th स्टैंडर्ड का पढ़ा था, अगर आपको याद हो, द फर्स्ट चैप्टर व्हाट वी हैड डन इन बिजनेस स्टडीज, उस वक्त में हमने देखा था कि देयर यूज्ड टू बी गिल्ड्स. राजा लोग अपना ट्रेड बैरियर्स बनाते थे. देयर यूज्ड टू बी सम गिल्ड, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करती थी. बट विद इन द बिजनेस वी वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. जिसका जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है. मतलब कि इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स, इफ़ यू टॉक टू देम, दे विल टेल यू 70s या 80s के अंदर आप कहीं काम कर रहे हो, वो कंपनी का अपना पॉलिसी है. नॉट एवरी कंपनी विल बी हैविंग द सेम काइंड्स ऑफ पॉलिसीज. बट ओवर द पीरियड, मतलब कितने सालों में एक्सपेरिमेंट्स हुआ, प्रैक्टिस हुआ. देन देयर वर मेनी पीपल लाइक हेनरी फेयोल, टेलर. इन लोगों के जो प्रिंसिपल्स हैं इनको देखा गया, एंड देन वी वुड ट्राई टू फाइंड दैट व्हाट मैनेजमेंट कैसा है. अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, अगर आता है, ठीक है, लाइक 2 क्वेश्चंस विल बी देयर. एक तो आपका डायरेक्टली आ सकता है, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और मैनेजमेंट एज अ साइंस, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. दूसरा, घुमाओ कोई आपको जो है केस स्टडी दे दिया जाएगा, लाइक A.R. रहमान वाला जैसे केस स्टडी है, एंड देन आपसे इसमें पूछा जाएगा देयर आर 2 डिफरेंट पीपल, तो एक्सप्लेन द नेचर, मतलब कि यहाँ पर जो बताया है, एंड
उसको मतलब कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन द एंटायर नेचर। मीन्स इफ इट इज pertaining to art you have to explain management as an art। तो पहले आर्ट के फीचर्स हम बताएंगे, फिर मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं वो हम बताएंगे। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर मैं इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँ तो इट्स नाउ व्हेन वी से आर्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। एज आई सेड, चाहे आप डांस करते हो, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, चाहे आप म्यूजिक करते हो, वी हैव एवरी म्यूजिक इज फॉर्म्ड विद 7 नोट्स ओनली। मैं हिंदुस्तानी क्लासिक गाती हूँ या फिर मैं कर्नाटिक संगीत गा रही हूँ, एवरीथिंग इज बेस्ड। माय कजन राइट नाउ, माय कजन डॉटर इज डूइंग शी इज डूइंग बैचलर्स इन म्यूजिक, शी इज इन बॉस्टन। तो उनका, लेकिन जो नोट्स है वो वही 7 नोट्स है। चाहे हम उसको सारेगामा पाधानीसा से कहते हैं या फिर हम केसियो में उसको अलग करते हैं, यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है। डांस के भी आपके बेसिक सेम होते हैं। लिटरेचर, पब्लिक स्पीकिंग, आप यू आर एड्रेसिंग अ स्टूडेंट ग्रुप और यू आर एड्रेसिंग अ क्राउड। पब्लिक स्पीकिंग व्हेन हम बोलते हैं तो हमारा एक मतलब कि थियोरेटिकल नॉलेज है कि आई कांटेक्ट रखो। Personalized application. I gave you the example of Amit Trivedi and Arijit Singh. दोनों का अपना एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, मतलब मैं थोड़ा सा मतलब मैं न्यू सॉन्ग सुनती ही हूँ, बट आई ऑल्सो लव टू हेयर द ओल्ड सॉन्ग्स, स्पेसिफिकली 70 to 90 के बीच का। So definitely my favorite singer goes to, I can say, Kishore Da and Lata Mangeshkar. So in those times you used to have Mohammed Rafi also. तो मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के गानों में क्या फ़र्क आता है? दोनों वही गाने गा रहे हैं। एक मूवी के अंदर एक गाना उसने गाया है, एक गाना इसने गाया है। जहां आपका सर्टन टाइम्स, अगर आप पुरानी मूवी देखो या नई मूवी भी देखते हो, क्योंकि आजकल क्या मिक्स्ड सॉन्ग्स आते हैं, तो अगर आप कोई मूवी को देखो जहां सैड हो जाता तो वहां अरिजीत को डाल देते हैं, जहां थोड़ा सा उछल कूद होता है वहां बादशाह को डाल देते हैं। तो व्हाई दिस इज बिकॉज दैट्स अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एज आई टोल्ड यू अबाउट द आर्टिस्ट M.F. Hussain and Raja Ravi Verma. Same, 2 actors. Shah Rukh is Badshah and Salman is Bhaijan. Amir is perfectionist. That is where art comes, based on practice and creativity. Over the period when we have been doing, as I said, all the music is based on 7 notes. हमने उसके अलग अलग क्रिएटिविटी बना दिए हैं। Today we are having the fusion music. Now, is management as an art? तो yes, याद रखना, yes, to some extent it can be said as an art. Please, you all are very good in English, so I don't need to explain it in that way, but it is written as an art. It is not management is an art, management as an art. मतलब उसमें आर्ट के कुछ क्वालिटीज हैं। It fulfills some criteria of art. First, as I said, हम सबका थियोरेटिकल थे कि आप में से शुभोदीप एक मैनेजर होगा, सुकल्याण एक मैनेजर होगा, अंशिका भी होगी, मौलिका भी, कशिश भी होगी, सब मैनेजर्स होंगे। बट डेफिनेटली आप किस इंस्टीट्यूशन में, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, दैट वुड डेफिनेटली हैव योर इफेक्ट। आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो, इन मार्केटिंग एंड सेल्स, यू नीड टू मेक
everyone fool. आपको ये कहना पड़ेगा कि ये जो फोन है ये बातें कर सकता है, और आपको उनको यही यकीन दिलवाना कि आपको बातें करना है. दैट इज मतलब कि मार्केटिंग. वेयर एज इन ह्यूमन रिसोर्स यू आर डीलिंग विद द स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स. वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्शन, वहां आप जो हो रॉ मटेरियल से काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जो एरिया होगा वो अलग अलग होगा. तो हमें प्रैक्टिस करना है, तो हम क्या करते हैं, वी स्टडी. हमारे सब लोग एमबीए में वही पढ़ेंगे. जो फाइनेंस पढ़ रहा है वो भी बेसिक फर्स्ट ईयर तो सबका सेम रहता है. जो फाइनेंस पढ़ रहा है उसका भी वही रहेगा, जो मार्केटिंग पढ़ रहा है उसका भी वही रहेगा, जो कि दूसरा मतलब कि कर रहा है उसका भी सेम रहेगा. हम अपने डोमेन में आते हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है ना. सो डेफिनेटली we have to study, observe and experience. As I said, we have certain principles, and today all the organizations are following the principles of Fayol's. They are following the principles of Taylor. यानी कि हमारे जो यूनिवर्सल मतलब की है वो करते हैं, लेकिन दे कैन नॉट डायरेक्टली बिल्कुल जैसा लिखा है ना वो हम नहीं कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं. सी व्हेन अ पर्सन इज डीलिंग विथ वर्कर्स, वहाँ आपका जो काम करवाने का तरीका होता है वो अलग होता है. व्हेन यू आर डीलिंग विथ पीपल हु आर हाईली इंटेलेक्चुअल, जिनमें ईगो कूट कूट के भरा हुआ होता है, वहाँ आपको थोड़ा सा अलग काम करना पड़ता है. So good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, initiative, innovation. And students of management also apply these principles differently depending on how creative they are. जैसे आर्ट में है, नोट वही है, सात सात सुर है, एक ऐसे गा रहा है, एक ऐसे गा रहा है, एक हाई पिच पे गा रहा है. सिमिलरली एक मैनेजर किसी और तरीके से काम करवाएगा, दूसरा किसी और तरीके से, तीसरा किसी और तरीके से. सो दैट मीन्स दैट क्वालिटी ऑफ creativity, experimenting is there in management. A manager applies this acquired knowledge in a personalized and skillful manner, and that too in a given situation. He is involved in the activities of organization, studies a critical situation, formulates his own theory, and इसीलिए हमारे मैनेजमेंट में डिफरेंट theories, different styles होते हैं. The best managers are committed, dedicated, highly trained, educated. Personal qualities like ambition, self-motivation, creativity, desire, ये सारा होता, लेकिन all the management practices are based on some set of principles. एक successful management क्या होता है? What distinguishes a successful manager from a less successful is the ability to put these principles into practice. अब आप नहीं सोच सकते हो कि फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स को आप अपने मतलब की ऑर्गेनाइजेशन में डाल दो. भाई मैं तो यूनिटी ऑफ कमांड भी डाल रहा हूँ, मैं यूनिटी ऑफ मतलब की उसमें भी डाल रहा हूँ. इन योर सिचुएशन यूनिटी ऑफ कमांड मे नॉट बी एप्लीकेबल. इन योर सिचुएशन डिविजन ऑफ वर्क मे नॉट बी एप्लीकेबल. क्या करोगे आप? बट अ सक्सेसफुल मैनेजर इज जो आर्टिस्ट की तरह क्रिएटिवली थिंक करेगा, वो आपका सक्सेसफुल है. यानी कि एक्सपेरिमेंटिंग इज देयर, आवर ओन क्रिएटिविटी इज देयर, एंड सम प्री एक्वायर्ड स्किल इज देयर. लाइक आर्ट में कुछ प्री एक्वायर्ड स्किल होता है, लेकिन हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने क्रिएटिविटी हम उसमें डालते हैं. लाइक A.R. Rahman is completely different from all the other musicians. How he is different? Learn तो उन्होंने भी वही चीज की थी. So the only thing is how he has brought it into practice. He can give the music to Hindi, he can give it to Kannada, he can give it to Tamil, he can give to English, he can give to anyone. So that's his creativity. That's why he is more successful than any other.
This is not my personal view. This is a question in your book. Management as a science. मतलब whether management can be called a science. साइंस क्या है? आप पानी में नमक डालोगे तो पानी नमकीन होगा, मीठा नहीं हो सकता है. आप चाहे कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लो, it has certain general truth. There are some general law. आप ब्लेड लेकर अपने हाथ को काटोगे तो उसमें से खून ही निकलेगा. आप चाहोगे उसमें से पानी निकले तो वो नहीं निकल सकता है. That's a law. So whether these laws are applied in management, systematized body of knowledge. मतलब मैंने आपको बताया ना कॉज एंड इफेक्ट का थ्योरी, जो मैंने एप्पल का आपको बताया. An apple falling from a tree towards the ground explained the law of gravity. भाई बस वो that is the law which is applicable, which is the phenomena. It is based on experimentation. Yes. Over the period, many scientists have been experimented, or still they are doing. Like COVID. कोविड से क्वेश्चन आ सकते हैं भाई. कोविड, अब हम 2019 में जब कोविड आया था, 2019 कोविड-19 कहते हैं हम, इन द वुहान एरिया, द साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज देयर. अब क्या बोलते हैं, पहले कोविड का वेरिएंट था, फिर वो पता नहीं अल्फा वेरिएंट था, फिर बीटा वेरिएंट था, पता नहीं कौन सा वेरिएंट आ गया है, डेल्टा वेरिएंट है, और अभी ओमिक्रॉन आया है, और अभी ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों आ गया है. यानी कि दीज आर ऑब्जर्व्ड. कैसे पता ये डेल्टा है और ये ओमिक्रॉन है, बताओ. मतलब मुझे दोनों बार बुखार आया. लेट मी टेल यू, आई गॉट फीवर इन बोथ. पहले में भी मुझे ही आया, दूसरे में भी मुझे ही आया. एंड गॉड्स ग्रेस देखो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बोलती रहती थी मुझे फीवर आए, मैं एक दिन बीमार हो जाऊं, और जो सबसे खतरनाक चीज थी वो मुझे ही आया था. In the first also I had the same symptoms, in the second also I had the same symptoms. I had the severe headache हुआ. फर्स्ट वाले में तो ये था कि मैं पोंछा लगा रही थी एंड अचानक से मेरे पैर जो है वो ऐसे लटकने लग गए, सच में ऐसे लटक रहे थे. एंड देन आई केम टू माई डॉटर एंड आई सेड आई एम गेटिंग फीवर. शी सेड ममा लेट अस टेस्ट, क्योंकि मुझे भी फीवर है 2 दिन से. इन सेकेंड आई वॉज टीचिंग, 3 बजे के बैच को टीच कर रही थी. एट 4 o'clock आई गॉट सिवियर हेडेक. आई जस्ट सेड, मेरी सेकेंड वाले 4 o'clock के बैच को मैंने बोला बेटा आई एम नॉट एबल टू टीच, मैं छुट्टी कर रही हूँ. आई गॉट फीवर. नेक्स्ट डे जब टेस्ट करवाया था तो कोविड था, तो उसमें भी वही था, हाथ और पैरों में दर्द था, वही फीवर था, वही थोड़ी सी नोज का मतलब प्रॉब्लम था. तो व्हाट वाज द डिफरेंस इन द एक्सपेरिमेंटिंग? बट द सेकेंड टाइम व्हेन आई गॉट, द डॉक्टर सेड इट इज ओमिक्रॉन. So what is that? They observe the pattern. They repeatedly experiment. फिर वो लोग उसको एक नाम देते हैं. हमारे पास जितने भी एनिमल्स के नाम हैं, बीमारियों के नाम हैं, प्लैनेट्स के नाम हैं, they are all universal validity. Means it is applied everywhere. Universal मतलब it is applied everywhere. So, does management have these characteristics? Yes. To some extent, we can say, has some characteristics. Management has a systematized body of knowledge. It has its own theory and principles that have been developed over a period of time. हम जब इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं, आपके ये पेपर में, ये बुक में बना हुआ है, यू कैन सी दिस, ये वाला, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी. तो ये इन सब से, मतलब हम साइकोलॉजी को क्यों बोल रहे हैं? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजी. इन साइकोलॉजी वी लर्न द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन.
मतलब एक बच्चा, एक इंसान ऐसा बिहेव क्यों करता है, राइट? यही हमारा साइकोलॉजी है. सो व्हेन वी आर डीलिंग विद द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उस साइकोलॉजिकल थियोरी को लगाते हैं कि सामने वर्कर जो है, व्हाई दे आर डिमांडिंग दिस. इन मैनेजमेंट ऑल्सो वी हैव सर्टन प्रॉब्लम्स. हमारा जो डायरेक्टिंग वाला चैप्टर है उसमें आप देखोगे कम्युनिकेशन बैरियर्स, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन करके एक मतलब कि हमारा कंसेप्ट है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो व्हाट इज, मतलब कि वो इंसान बीमार था, उसके घर में प्रॉब्लम थी, उसको मुझ पर भरोसा नहीं था, मुझे उस पर भरोसा नहीं था. सो दीज आर द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में गैप क्रिएट करता है. सो मैनेजमेंट ऑल्सो हैज सम सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. For example, all of us discuss sports like cricket and soccer using a common vocabulary. The players also use these terms to communicate with each other. Similarly, managers need to communicate with one another with the help of common vocabulary. मैनेजमेंट में भी है, जैसे हम वर्ड्स बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट में वर्ड्स होते हैं, ये तो हमारी कंपनी की पॉलिसी है, ये तो कंपनी की स्ट्रेटजी है. हम वो हिंदी में जो नॉर्मल शब्द होते हैं ना वो नहीं यूज़ करते. कंपनी चाहे इतनी सी होगी या फिर इतनी बड़ी, वी टॉक अबाउट द वर्ड्स इन सर्टन वोकैबुलरी. इफ यू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जैसे कि आई लर्नड वन थिंग, मैंने भी लर्न किया दैट हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम फीलिंग लॉट्स ऑफ मैम, आप बोलते हो मैम मेरा ना कल टेस्ट है. मैं एक जनरल कन्वर्जेशन बता रही हूँ, मैम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम तो ऐसे ही बात करते हैं. बट इन द मैनेजमेंटल वर्ड्स दे से दिस विल बी अ बिग चैलेंज फॉर मी. दे डोंट यूज अ वर्ड प्रॉब्लम, दे यूज चैलेंज. सो देयर इज अ कॉमन वोकैबुलरी. जैसे साइंस में आपकी थ्योरी होती है ना, साइंस में डॉक्टर क्या बोलता है आपको, व्हाट डज द डॉक्टर से इफ यू आर हैविंग, आप डॉक्टर के पास गए, आपको थोड़ा सा जुकाम है, तो डॉक्टर कहता है आपको जो है, यू आर हैविंग, ओ नो नो नथिंग, इट इज़ नथिंग, इट इज़ कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, नथिंग इट इज़ देयर. हमारे लिए तो वो बहुत मतलब कि 4 भारी भरकम शब्द बोला उन्होंने, और हमें तो सिर्फ लंग सुनाई दिया था, बस सिर्फ लंग सुनाई दिया था. कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, हमें तो सिर्फ लंग सुनाई दिया कि मेरे लंग्स में कुछ हो गया है. और हम में से कोई अच्छे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गूगल में फाइंड करते हैं और सीधा गूगल बताता है तुम्हें तो लंग कैंसर है, मरने वाले. But the doctor has said a very common word, cold है तुम्हें. But the doctor uses that. Similarly, in management also we use certain vocabulary. The principles of management have evolved over a period of time based on repeated experimentation and observation in different types of organization. Like let us take the example of foot joint. फुट जॉइंट का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली वी नेवर हैड द कल्चर ऑफ कैफे कल्चर. कैफे कल्चर हम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था. मतलब हमारे साउथ के अंदर तो ये मुझे आई डोंट नो अबाउट क्या दिस कोलकाता एंड ऑल, बट हमारे साउथ में तो एक मज़ेदार चीज़ थी कि 4 बजे हुए तो पड़ोस में जो भी दुकान होती थी वहाँ से जाके हम डोसा वोसा खा लेते थे. बट वी नेवर हर्ड अबाउट द कैफे कल्चर. बट ओवर द पीरियड, मैंने पिछले 4-5 years में देखा है, नाउ देयर इज अ डेवलपमेंट इन द कैफे कल्चर. व्हाट इज दिस, व्हाई दिस कैफे कल्चर हैज कम? दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव डन इन अनदर कंट्रीज. किसी कंट्री में वो सक्सेसफुल हुआ तो हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया कि किस तरीके के लोग आते हैं. देन व्हेन वी वांट टू अट्रैक्ट द यंगस्टर्स, तो हम जो है इस तरीके से वी ट्राई टू. तो मैनेजमेंट डील्स विद द ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बिहेवियर, एंड वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट. दैट इज व्हाई वी कैन नॉट से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एग्जैक्ट साइंस. साइंस में तो एग्जैक्ट है, साइंस में तो एग्जैक्ट है. जैसे उन्होंने बोला है कि अगर ये 2 चीज़ें तो ये ओमिक्रॉन है, अगर ये 2 चीज़ें तो ये टाइफॉइड है, दैट्स एग्जैक्ट. बट इन मैनेजमेंट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट.
So you cannot call management as an exact science, but it has got some characteristics of science. Despite these limitations, management scholars have been able to identify general principles. F.W. Taylor, मैंने अभी आपको बताया, हमारा सेकेंड चैप्टर वही है. Henry Fayol. Since the principles of management are not exact as the principle of science, their application and use is not universal. मतलब you cannot use it at all the situation. Science can be used, it is universally applicable. It can be applicable everywhere. बट हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स, एंड ह्यूमन बींग्स को जब आप डील करते हो तो डेफिनेटली मेरा आपके साथ जो इंटरेक्शन है, मे बी दैट इंटरेक्शन वॉज नॉट विद माई अर्लियर, और मे बी विथ सम ऑफ द, इफ आई टॉक अबाउट माई 4 years, देयर वर स्टूडेंट्स वो वेरी वेरी क्लोज टू मी, जिनका मेरे को मतलब मुझे ये भी नहीं, ये वो सुबह से लेकर वो रात तक क्या करते हैं वो भी पता होता था. लास्ट ईयर आई हैड मतलब लास्ट ईयर के अभी भी चल रहा है वो, तो दे आर, उनमें से 2-3 बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मतलब जो दोज आर वेरी क्लोज, बट डेफिनेटली आई डोंट हैव अ relation which I can say a friendly or a homely relation. So every time we deal with people, and you cannot expect the people to reciprocate the same manner जैसा हम साइंस में होता. साइंस में अगर आप कहोगे कि मैंने जो है पानी को उबाला है, तो वो पानी उबलेगा ही उबलेगा. हाँ, आपने उसे कम में रखा है तो इट विल टेक टाइम, अगर आपने तेज रखा है तो इट विल बी बॉइलिंग इमीडिएटली. व्हेन वी से 100 डिग्री इज द बॉइलिंग, तो 100 डिग्री का मतलब वो 100 डिग्री ही रहेगा. बट दिस कैन नॉट बी डेल्ट विद साइंस. द मैनेजर्स हैव टू यूज डिफरेंट टेक्निक्स in different situation. So management has some principles of science but not exact. अब ये वाला जो लास्ट वाले ये जो 5-6 लाइन्स हैं, इनको अच्छे से रखना. The practice of management is an art, यानी कि we can say that management is having the principles of art. Managers can work better if their practice is based on principles of management. This constitutes the science of management. Management as an art and a science are therefore not mutually exclusive but complement each other. मतलब आर्ट के कुछ इसमें है, साइंस के इसमें कुछ है, और ये दोनों साथ में चलते हैं. कैसे? जैसे आर्ट में हम एक्सपेरिमेंट करके वी अप्लाई, हम मैनेजमेंट में भी करते हैं. बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम फॉर्म करते हैं नॉट विद द एग्जिस्टिंग बट विद द एक्सपेरिमेंट. जबकि साइंस के प्रिंसिपल्स पहले से ही फॉर्म्ड है. साइंस के प्रिंसिपल्स पहले से ही फॉर्म्ड है. इफ यू हैव लर्नड योर 11th एंड 10th में आप लोगों ने जो है, इफ यू हैव लर्न केमिस्ट्री के अंदर, तो ऑल द प्रिंसिपल्स आर ऑलरेडी डिराइव्ड. लेकिन यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स को डिराइव करते रहते हैं. हम आर्ट को यूज करके साइंस को डिराइव करते हैं. सो इन अनदर manner we can say management has some quality of art and science. Next, profession. Profession मतलब doctors, lawyers. They, as I have already explained you, that to become a doctor, to become a lawyer, you need to go through certain exams. तो क्या हमारे मैनेजमेंट में भी ऐसा है? Yes, we have, but we cannot say that management is a profession. Profession में क्या होता है? Well defined body of knowledge. जैसे to become a doctor, you enter into a medicine school. You have to study that pure science. Restricted entry. आपको, if you want to become a lawyer, definitely with the commerce also you can become. But
To become a doctor you need to have science, PCM. अगर आपको इंजीनियर बनना है तो PCM और डॉक्टर बनना तो PCB. यानी कि you have to acquire that and you have to give that example. But for chartered accountant, to become a chartered accountant in India, a candidate has to clear a specified exam. But yes, CA जो है that can be pursued by 3 of us. Science से, commerce से कोई भी कर सकता है. Professional association. When you become a doctor, Medical Council of India. When you become a lawyer, Bar Council of India. But in management, ऐसा कुछ नहीं है. You have become MBA, you have become chartered accountant. Yes, chartered accountant बनने के बाद you will be getting the membership of ICAI. You will be getting the benefits of ICAI. मतलब they are the one who grant the certificate. They are the one who are formulating the code of conduct. Ethical code of conduct. मतलब they have to follow some strict ethics. उन्हें ओथ लेना पड़ता जब वो अपने प्रोफेशन में एंटर करते हैं. एंड वेदर यू आर इन द लॉ, वेदर यू आर इन द डॉक्टर, वेदर यू आर मेडिसिन, आपका बेसिक होता है सामने वाले को सर्विस कर. यू आर अ डॉक्टर, यू हैव टू ट्रीट योर पेशेंट. यू आर अ लॉयर, यू नीड टू गेट द जस्टिस. नाउ मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन. व्हाई? All over the world, there is marked growth in management as a discipline. It is based on a systemic body of knowledge comprising well-defined principles. This knowledge can be acquired in different colleges and professional institutes and through number of books and journals. The subject is also taught. Some of these have been like IIMs. And इनमें हमारा जो है we have an examination. But there is no restriction कि इनमें एग्ज़ाम करने के लिए आपको जो है यू हैव टू बिकम, मतलब कि जैसे आपको इफ़ यू वांट टू एक्वायर मेडिकल तो आपके पास PCB होना चाहिए. लेकिन MBA करने के लिए लोग जो है वो उसका नाम क्या, हमारे इंजीनियर्स भी MBA करते हैं. द एग्जाम्पल इज चेतन भगत, IIT IIM. He was an engineer by profession and later on he shifted to IIM. And this is only one example. There are number of. My husband tells me, पहले साइंस लेते हैं, फिर मतलब कि साइंस पढ़ते हैं, उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैनेजमेंट बन के मैनेजर्स बन जाते हैं. There is no restriction or anyone being designated or appointed as manager. Anyone can be called a manager irrespective of their educational qualifications possessed. लॉयर में अगर आप ऐसे हो तो यू विल बी स्यूड. मेडिसिन में हो तो आपको जो है फेक डॉक्टर बोला जाएगा. बट इन even a person who doesn't have any qualification can be the manager of a company. फादर की कंपनी है, बच्चा मैनेज कर रहा. The recent example is yesterday only I came to know. हमारे मतलब क्या, as you all know that I was working with one school. So yesterday I had an interaction with the principal ma'am. So she said that now their son, who is hardly a graduate, is now managing the school. So एक डॉक्टर ऐसा कर सकता था कि मेरे पापा डॉक्टर हैं तो मैं डॉक्टर के चेयर पे बैठ के तुम लोगों को ट्रीट करता हूँ. आप, इज इट पॉसिबल? नो. My father was a lawyer, so I also have the book, so I'm going to take the case. Is it possible? No. But a manager is possible. If your father is having your business and you are managing, you are the manager. So there is no mandatory qualifications, any degree. Yes, over the period MBA का जो एक वेव है वो बढ़ गया है, no doubt, because the people are getting good salary. और आज I think IIT दिल्ली का, मद्रास का कुछ था, there was some वो he has got the highest pay in Amazon.
बट देर इज नथिंग लाइक मैनेजर बनने के लिए आपको ये करना पड़ेगा. You can have diploma, you can have degree, even you don't have, you can. Then to become a doctor or a lawyer, you have to associate yourselves with DCI, MCI, BCI. But to become a manager, you don't need to become a member of any association. वो आपकी मर्जी है. लाइक हमारे यहाँ पर आयमा जो है इट इज़ कंडक्टिंग एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है. इनफैक्ट दे कंडक्ट द ओलम्पियाड्स ऑल्सो. एंड में हमारा जो बाकी 12th होते हैं ना तब करते हैं. दे डू मैनी, मतलब कि दे कंडक्ट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एनी वन टू बिकम द मेंबर. एंड देर इज़ नो सच कि ये मेंबर बन सकता, वो मेंबर नहीं बन सकता. There is no compulsion for the managers to be members of such association, nor does it have any statutory backing. The basic purpose of management is to help organization in its stated goal. This may be profit maximization, service for a hospital. However, profit maximization as the objective does not hold true and is fast changing. हाँ, मैनेजमेंट का मतलब है efficiency, effectiveness, providing service to the society, good quality goods, but it doesn't mean that they have to only ethically follow. Like doctors को ethically follow करना होता है, lawyers को ethically follow करना होता है. They cannot breach their return terms को वो breach नहीं कर सकते हैं. Like my daughter tells me, वो सर्जरी कर रही होती है ना तो वो मतलब भेजती है, मतलब उसको यहाँ से स्यूटर करना तो वो यहीं से स्यूटर करना है, मतलब उनका एक, दे हैव दैट. वी ऑल्सो हैव द सर्विस मोटो, बट आवर मोटो इज नॉट सर्विस. वी ऑल्सो हैव सर्विस मोटो, बट आवर मोटो इज नॉट सर्विस. सो वी कैन से प्रोफेशन जो है, वी कैन नॉट कंपेयर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. Let us quickly revise. We studied, before we go to the next concept, we studied that what is the nature. Can we call management as an art? Can we call management as a science, or can we call it as profession? तो जब हमने मैनेजमेंट साइंस और आर्ट के फीचर्स को पढ़ा तो we came to know that art, some theory, our own creativity and experience. Management science, some general principles, experimenting. और मैनेजमेंट में ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी हैं. Management also has some existing principles, like we follow the principles of Fayol, we follow the principles of Taylor, but we do not follow it blindly. We cannot follow it blindly, since management is dealing with the humans. For example, if there is a principle, as I said, unity of command, अगर वो प्रिंसिपल है लेकिन हम उस प्रिंसिपल को अपने यहाँ पर नहीं कर सकते हैं. यूनिटी ऑफ कमांड सेज वन बॉस एंड वन सबऑर्डिनेट. लेकिन अगर कंपनी छोटी है, ठीक है ना, कंपनी छोटी है जहां नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम है, तो वहां पर आप एक बॉस के नीचे एक सबऑर्डिनेट नहीं रख सकते हो. समटाइम्स द टू पार्टनर्स ऑल्सो गिव द इंस्ट्रक्शंस टू वन सिंगल पर्सन. You cannot establish certain rules and regulations in certain areas, but yet आर्ट और साइंस के कुछ गुण, कुछ वैल्यूज आपके मैनेजमेंट में है. But when it comes to profession, we don't have, because profession is completely rigid. To enter into a profession, you have to go through the rigorous procedure, you have to pass some exam, you have to attain some membership, you have to follow some ethics. And there is no such rule that a person cannot become a manager if he or she has not passed this exam.
नाउ द नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मतलब आप अब हम बार बार हम 2-3 दिन से आई थिंक since I've started this chapter, the only one word you might be hearing, it might be echoing in your ears, management. क्या है मैनेजमेंट? हाँ, मैम ने बताया था मैनेजमेंट इज द प्रोसेस जिसके थ्रू हम काम करवाते हैं. तो कौन काम करवाता है? हु आर दे? वेयर आर दे प्लेस्ड? सो इन अ हिरार्की, हिरार्की का मतलब हो जाता है बेटा कंपनी के अंदर, मतलब कि व्हेन वी टॉक अबाउट द हिरार्की, अब कंपनी में क्या होता है, वी विल बी हैविंग से द ओनर. अब ओनर के नीचे डिपेंड्स, मतलब आपकी कंपनी किस तरीके के हिरार्की को फॉलो करती है, टॉल हिरार्की को फॉलो करती है, नैरो को करती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. बट देयर माइट बी सम पीपल जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी को फॉर्म करेंगे. मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेरी कंपनी को मैं इस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करूंगी, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स आई शुड डू, एवरीथिंग विच इज डीलिंग विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी विल बी डेल्ट विद वन. मतलब कि द ओनर्स, CEOs, CFOs. अब ये सारे काम तो नहीं कर सकते हैं. We cannot become jack of all and masters of none. हाँ, one man company, sole proprietorship में ये possible है. But when we talk about organization, when we talk about company, वहाँ ये possible नहीं है. So definitely we will be having some people who will be working under us. जो हमने फॉर्मुलेट किया है पॉलिसीज को, उनको ये लोग जो है इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड देन इनके नीचे देयर विल बी अनदर सेट जो वर्कर्स से काम करवाएंगे. सो इन दैट मैनर वी डिवाइड द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इनटू द टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल. Management is a universal term used for certain functions performed by individuals bound together in a hierarchy. Every individual in the hierarchy is responsible for the sum. यानी कि टॉप लेवल अपना, मिडिल लेवल अपना, नीचे का लेवल अपना. Everyone to able to fulfill that responsibility is given some authority and responsibility relation. कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, किसको अथॉरिटी है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये हम एस्टैब्लिश करते हैं विथ 3 लेवल्स. एंड व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स, मतलब ये क्वेश्चन आपके 2 तरीके से आते हैं. पहला है वेरी कॉमन, अगर आप अपनी बुक्स को देखोगे तो यू विल फाइंड वन क्वेश्चन, my grandfather was working as a CEO of the company, identify the level and also explain 2 functions of the same. तो एक तो हो सकता है आपको आइडेंटिफाई करना टॉप लेवल क्या है, मिडिल लेवल क्या है, और या आपको जो है प्रॉपरली पूरे तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है. तो एक बात शुरू से याद रखना, जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें मैं बोलूँगी ना, उसमें आपको 200% यू हैव टू मेक द पिक्चर. 200%. आप कोई, यू कैनॉट मेक एनी एक्सक्यूज. जैसे डायरेक्टिंग में आपका मैस्लोज थ्योरी है, उसमें तो लिखा हुआ ही आ जाता है कि आपको पिक्चर बनानी है, डायग्राम बनाना है. मतलब सिमिलरली इन द ऑर्गेनाइजिंग आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आता है, वो भी आपको पिक्टोरियल ही बनाना पड़ता है, चाहे आप रो या कुछ भी करो. इसी तरीके से जो आपके 3 लेवल्स आएंगे, तो यू ऑल्सो हैव टू मेक द, ये बना हुआ है, आप इसको जैसे मर्जी बनाओ, ये बना हुआ है, आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, आप सिंपल मतलब कि जो वेब चार्ट है वो भी बना सकते हो. दैट्स अप टू यू. सो वी हैव 3 लेवल्स, टॉप, मतलब कि मिडिल एंड सुपरवाइजरी. मीन्स द सीनियर मोस्ट. इसको तो बहुत अच्छे से करना, बिकॉज दिस कैन कम, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है. मेनी टाइम्स द टीचर्स ऑल्सो इवन मार्क रॉन्ग.
whatever they may be called, chairman, CEO, chief operating officer, president, vice मैम president, सीओओ जो होते head हैं उसकी एक बार फुल फॉर्म finance, बताना। marketing, etc. मतलब they are the one who integrate the element and coordinate the activities of different departments. मतलब जो इनका डिपार्टमेंट होता है उसका पूरी जिम्मेदारी। These top level managers are responsible, ये आपका जो है की वर्ड है, दिस इज द की वर्ड। आपके पेपर में जब आता है ये वाला की वर्ड आता है कि माई ग्रैंड फादर वर्कड इन अ मतलब की कंपनी एज दिस, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू एनालिज द बिजनेस एनवायरमेंट, आइडेंटिफाई द लेवल इन विच ही वॉज वर्किंग। तो कंपनी आज प्रॉफिट पे है या नुकसान में है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी पॉलिटिकली, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, आपके जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो हमारे बिजनेस पर उसका क्या असर होगा। दे आर द वन हु फॉर्मुलेट गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। They are responsible for the entire activities of business, for its impact. The job of top manager is complex and stressful, demanding long hours and commitment. Means कंपनी के ओनर्स और ओनर्स के तुरंत बाद जो होते हैं वो आपके टॉप लेवल होते हैं। मिडिल, नॉर्मली हम में से हर एक बच्चा जब एमबीए करता तो वी एंटर इनटू द मिडिल मैनेजमेंट ओनली। इट्स अ लिंक बिटवीन टॉप, हमसे जो ऊपर, और जो हमसे नीचे है यानी कि सुपरवाइजरी। They are subordinates to top and superior to the first line managers. First line managers कौन है? Supervisory. First line managers कौन है? Supervisory. They are usually known as division heads. मतलब production manager. Middle management is responsible for implementing and controlling plans and strategies जो उन्होंने develop की है उसको implement करना, उसको control plan करना। And also they are responsible for the supervisory levels. They are responsible for carrying out the plans formulated by top managers. उन्हें उन policies को interpret करना पड़ता है। They have to see they have enough staff. They are the one who will be assigning the duties to their staff. They will be motivating them. They will be coordinating with other departments. At the same time, they are responsible for all the activities of first level managers. Last, supervisory, जो कि आपके वर्कर्स के तुरंत ऊपर होते हैं। फोरमैन, supervisors. They directly oversee the efforts of workforce. Their authority and responsibility is limited according to the plans drawn by top management. उनको जो दिया उनको वही करना। They play an important role since they are the one who actually interact with the workforce and pass on the instructions of the middle management to the workers. Through their efforts, quality, wastage of materials is minimized. ये पेपर में आया हुआ है मतलब as a clue. And safety standards are maintained. Harish is working in a company. His main work is to ensure quality of the production, minimize wastage, and maintain the safety standard. Identify and explain the level of management in which Hari is working. The quality of workmanship and quantity of output depends on the hard work, discipline and loyalty of the workers. तो workers के साथ time to time coordinate करना, time to time उनके साथ interact करना, these all are the work of a supervisory. Whereas they also have to listen to the middle level manager, क्योंकि middle level उनको मतलब कि दे आर अथॉरिटी टू सुपरवाइजरी। टॉप लेवल इज द हायर मोस्ट अथॉरिटी
उनके नीचे मिडिल लेवल है, तो मिडिल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स टॉप लेवल एंड दे आर अथॉरिटी टू सुपरवाइजरी, मतलब वो अथॉरिटी अपना दे सकते हैं, उनको उनके ऊपर अथॉरिटी रख सकते हैं. Whereas supervisory level is next to middle level, so they are answerable to middle level and they have the authority over the workforce या फिर workers. So they are the three, और इनको हम लोग जो मैंने जो ये बोला है, this is called as authority to responsibility relationship. मतलब कौन अथॉरिटी है, कौन कमांड दे सकता है, टॉप लेवल मिडिल को दे सकता है, मिडिल लेवल सुपरवाइजरी को दे सकता है, सुपरवाइजर जो है वो वर्कमैन को दे सकते हैं. एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइजरी, supervisors are responsible to middle management is responsible for towards top management. कंपनी कितनी अच्छी चल रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, यस एवरीवन इज इन्वॉल्व, लेकिन उसको किस तरीके से हमें करना, व्हाट आर द चेंजेस वी नीड टू डू. अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है या दूसरी कंपनी कॉम्पिटिटिव आ गई है तो उसके सामने खुद को कैसे खड़ा करना है, ये सब टॉप लेवल देखता है. टॉप लेवल अपने पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है एंड दे गिव दिस फॉर्मुलेशन टू द मिडिल लेवल. मिडिल लेवल उनको समझता है, इंटरप्रेट करता है एंड अपने जो नीचे जो काम करते हैं, अपने टीम मेंबर्स हैं, उनके थ्रू वो काम को करवाता है. और जहाँ प्रोडक्शन आ जाता है, जहाँ वर्कर्स आ जाते हैं, वहाँ सुपरवाइजरी लेवल आ जाता है, दोज हु गेट द वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स. सो दिस इज these are the three levels of management: the top level, the middle level, and of course the supervisory level. We also call them as first level management, first line managers. In the next class आज हम लोगों ने 2 theories complete की हैं. One is nature and second is levels. In the third, that is in the next class, we will be going towards the functions of management, क्योंकि फंक्शंस ज़्यादा नहीं होंगे, दैट इज़ बिकॉज यही फंक्शंस आपके चैप्टर्स हैं आगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कोऑर्डिनेशन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगेन अ 5 marker क्वेश्चन इट कैन कम. सो विद दिस the chapter would end, I think, by I hope that in the next class it would be ended.